integrity and ethics, and which dedicated, integrated human being who is completely devoted to his service. And actually, as we know, professionally, evolution is inevitable. A man has to evolve in profession, because as we work for the more number of years, the responsibility and the accountability, the degree of it always increases, and there's an expectation which is on the higher side. And the right person who can be a role model before us to demonstrate the needs and ways of professional growth, Mr. Abhay Kumar is welcome on dais to present his presentation. Respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, HM Sir, and learned colleagues. I am here to discuss regarding the topic that is ways and means of professional growth. Before starting the topic, I just want to say a few things regarding the previous session. बड़ी लाइन के बाद उससे बड़ी लाइन खींचनी मुश्किल होती है, तो एक अच्छे प्रेजेंटेशन के बाद प्रेजेंटेशन देना मुश्किल होता है। धन्यवाद नीतू मैम, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था आपका। और उसी सिलसिले में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा प्रेजेंटेशन के सिलसिले में, वो आकार के सिलसिले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों से चाहूँगा कि ग्रोथ जो शब्द है वो टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ। अनुला मैम, ग्रोथ से आप मतलब आपके मन में क्या आता है? ग्रोथ शब्द सुन के क्या आता है? आपकी तरफ जो भी मतलब चेंजेज आ रहे हैं या जो चैलेंजेज आ रहे हैं, यदि आप उस चैलेंजेस के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहे हैं तो रियली यू आर ग्रोइंग बेटर देन प्रीवियस, है ना। हमारे पास एक लड्डू है, एक से 2 हो गया तो ग्रोथ हो गया। हमारा वजन यदि 77 किलो है, 78 हो गया तो ग्रोथ हो गया। मैं खराब और अच्छे की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा इसके साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है प्रोफेशनल ग्रोथ, बहुत सारे फिलोसफर्स ने बहुत सारा डेफिनेशन दिया है और इसका बहुत सारा वेज भी बताया है। तो आज के डिस्कशन में हम लोग प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है, आर द वेज बाय विच we can achieve professional growth, and how we are going to explore professional growth as a teacher. These things I will try to concise on these themes only. Growth and professional growth, these words are very big, and it is not in my capacity to discuss all these things. So now professional growth days 1999 के एक आर्टिकल उसके हिसाब से कहा गया था, प्रोसेस बाय विच टीचर्स रिव्यू, renew, extend their commitment as change agents, and by which they acquire and develop critically the knowledge, skills, planning and practice through each phases of their teaching lives. यदि इस पूरे डेफिनेशन को थोड़ा सा कंसाइज करेंगे तो लर्न, रीलर्न एंड अनलर्न। प्रोफेशनल एज ए टीचर, जो हम लोग कंटेंट की बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ये मतलब टीचिंग प्रोफेशन जो है वो डायनेमिक है और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो स्टैटिक है। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें,
चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, चेंजेस आते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा, जो जब हम लोग स्कूल जाते थे उस समय जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे किसी भी चीज़ का, बेसिक कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं होता है। ग्रेविटेशन है तो वो जमीन पे वो ही आएगा, लेकिन उनके वैल्यूज़ में हो सकता है चेंजेस हो, उसकी मात्रा में चेंजेस हो। तो हम लोगों को लर्न करना है, फिर रीलर्न करना है, उसी चीज़ को वापस हम लोगों को लर्न करना है। एंड समथिंग विच इज गोइंग और समथिंग विच इज चेंजिंग, something which is become something which is now obsolete, we have to delete those things from our. So this is all regarding growth according to this. Now, being a student of economics, the next definition of professional development from Organization for Economic Cooperation and Development, that teachers' professional development is the body of systematic activities to prepare teachers for their job, including initial trainings, induction courses, in-service training, and continuous professional development within school setting. That means professional growth include all types of training, from classroom to surroundings. It may be a short training, it may be a refresher course, it may be in-service course of 3 weeks, it may be induction course of 10 days. So all these things are compiled within the topic professional growth for teaching. So these two definitions are there for professional development for teachers. That is, we have to learn, we have to relearn, and we have to unlearn. And then there are different types of training courses which are going to sharpen our access. Last day जो मैडम का सेशन था उसमें स्टोरीज हम सब जानते हैं कि एक जो उडकटर था जिसने अपने एक्सेस को टाइम टू टाइम शार्प कर रहे थे, वो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा काम कर पा रहे थे बनिस्बत उनके जो लगातार काम कर। इट मीन्स we have to sharpen our access time to time. In this, why we need this professional growth or development? What is the need? So few heads are there under which we will discuss it. First, that expanding knowledge domain of subject. It is very much essential. Without knowledge, आप पढ़ते समय, ये हमको लगता है कि आप सब इत्तेफाक रखेंगे कि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बहुत अच्छा टीचर नहीं हो सकता। नहीं हो भी सकता है, हाँ, यस डेफिनेटली हो भी सकता है, लेकिन ये क्राइटेरिया कहीं नहीं है कि मतलब स्टूडेंट एक बहुत ही अच्छा है तो वो एक बहुत अच्छा टीचर हो। टीचर में एक गुण जो लर्नर की है, लगातार सीखने की प्रवृत्ति यदि है, यदि हम लोग वो क्या कहेंगे स्टैटिक नहीं हो गए हैं, वो सैचुरेशन पॉइंट जो है वो नहीं अचीव किए हैं, इफ वी आर लर्निंग थ्रू आउट देन डेफिनेटली वी विल मीन्स आवर प्रोफेशनल ग्रोथ विल बी। सो कंटेंट की एनरिचमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट ग्रोथ। नेक्स्ट, ड्यू टू चेंजिंग पेडागोगीज, there is right from the beginning there is continuous changes happening in the field of pedagogy. Increasing involvement of media, now all media, print media, electronic media and social media. अभी ये सोशल मीडिया का जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और कोरोना पीरियड में ये सोशल मीडिया ही हम लोगों की गाड़ी को 2 साल चलाया हमारे। तो इन
सब मीडिया का जो रोल इतना इम्पोर्टेंट, इतना इन्फ्लुएंसिंग है, तो उस मीडिया के साथ हम लोगों को क्या करना है, फोकस करना है। हम लोगों के साथ हम लोगों को उसको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोफेशन में इंटीग्रेट करना है, सो दैट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुल। देन फोकस ऑफ फोकस इन द यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका इम्पोर्टेंस अभी बहुत बढ़ गया है। हालांकि जब से हम लोग इन सर्विस कोर्स कर रहे हैं तब से पीपीटी बनाना और ये सारी चीज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन कोविड पीरियड में आईसीटी ही समझ लीजिए कि एजुकेशन का बेसिक नीड, एकदम बिल्कुल नीड ही है। और रिक्वायरमेंट जैसे चॉक और डस्टर हमारे लिए बिल्कुल एसेंशियल चीज़ है, उसी तरह से अभी आईसीटी की नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट, enactment of policies and schemes whatsoever policies and other things are introduced by government or by the educational department, so these policies should be implemented। और नीड ऐसा है कि देखिए टाइम टू टाइम पॉलिसीज बदल रही है और उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में यदि हम रुकेंगे तो मुश्किल है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इन सारे पॉलिसीज को हम लोगों को अनुकूल करना। नेक्स्ट, मीटिंग डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। डिमांड सोसाइटी का बढ़ता चला जा रहा है। अभी जो है कभी कभी ऐसी स्थिति है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है सर, और उसके साथ साथ नॉलेज की यदि हम बात करेंगे तो सारे विंडो खुल गए हैं। अब विंडो क्या, दीवार भी हट गई है। बच्चों को यदि हम पहले सोचते थे कि टीचर सब्जेक्ट नॉलेज देने वाला सिर्फ एक अच्छा गुरुजी, एक अकेले गुरुजी हैं, गुरुजी बताएंगे तो बच्चा सीखेगा, नहीं बताएंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। अब स्थिति वैसी नहीं है। अब हो सकता है चीज़ों को नॉलेज आपसे पहले बच्चों के पास पहुंच जाए, क्वालिटी नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, इन सारे चेंजेस सिनारियो और इन सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों के कारण जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसकी ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके उस पार्ट पे ध्यान रखेंगे जो पॉलिसीज़, जो डिफरेंट कमीशन और कमिटीज़ हैं जिन्होंने प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में क्या कुछ कहा है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। नाउ इन सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर इज नॉट एन इवेंट रादर दैन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सारे टॉपिक को समझने के बाद मेरे समझ में तो बस यही आ रहा है कि इट इज़ नॉट एन इवेंट। ये एक मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम, 2 दिन 5 दिन या 1 महीने की ट्रेनिंग नहीं है, कोर्स नहीं है कि हमने किया और वो ग्रोथ हो गया। इट इज़ एंडलेस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो सीसीटी है बच्चों के लिए, उसी तरह हम लोगों के लिए भी है, continuous and comprehensive. Now, professional development of teacher as an opportunity to learn a new teaching learning methodology। क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाएंगी। डेवलपमेंट में मेथडोलॉजी को हम लोगों को सीखना है। डेवलपिंग द competencies to deal with changing scenario of teaching learning process। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम लोगों को चाहिए अडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ लर्नर्स एज चेंजेस इन टीचर्स अप्रोच, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस टू एनहांस लेवल ऑफ लर्निंग। सो प्रोफेशनल ग्रोथ फॉर दीज थिंग्स। नाउ मुदालियत कमीशन क्या कहता है प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में, जो बेसिकली स्कूल एजुकेशन के लिए ही था। इसमें स्टेटमेंट है और आपको उसमें मिल जाएगा दैट इंक्रीज इफिशिएंसी विल कम थ्रू एक्सपीरियंस क्रिटिकली एनालाइज एंड थ्रू इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल। दोनों बातें की जाएगी, इंडिविजुअल की एफर्ट और ग्रुप। तो ये जो एजुकेशन, ये मुदालियत कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि रोल
दोनों का इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल का एज वेल एज सोसाइटी। और क्या चीजें, मतलब कौन कौन सी हैंड्स है या कौन कौन सा इवेंट है जिसके जरिए आप प्रोफेशनल ग्रोथ टीचर्स पे ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। रिफ्रेशर कोर्सेस, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जान रहे हैं इस चीज़ को। डेवलपिंग सब प्रोग्राम ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ कमीशन जो है उन्होंने सजेस्ट किया था कि किसी भी स्कूल के एक टीचर को हम लोग मेंटर की तरह यूज़ करेंगे और वो मेंटर बाकी सारे थ्रू डाइट हो या दूसरे जो क्या कहेंगे वो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आईसीटी वगैरह का जो ट्रेनिंग उसके, हाँ क्लस्टर पे सीआरसी बीआरसी ये सारे हैं, डाइट है, उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो जो मेंटर हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और इससे पूरे के पूरे सारे स्कूल्स में जो प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। दिस इज ऑल अबाउट द स्कूल मुदालियत कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1950। देन अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन कुछ चेंजेस हुए हैं। इसमें वो स्कूल बेस्ड था, इसमें बहुत सारा ये थोड़ा सा बड़ा बृहद रूप में था, तो इसमें स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विद अ नोडल स्कूल शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ इंडिविजुअल को मेंटर बनाया जा रहा था, यहाँ स्कूल को हाँ कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोगों का एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों के लिए जेआईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हाँ, तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अलग से प्रोग्राम चलते हैं। ये स्कूल कॉम्प्लेक्सेस है जिसके थ्रू जो है पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए। देन फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स वर्किंग इन द स्कूल शुड बी स्टैब्लिश्ड। ठीक, कुछ टर्म्स इसमें उसके साथ भी जोड़े। तो ये कोठारी कमीशन, और इसी में बहुत सारे जो है अलग अलग नीड्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट में टर्मिनोलॉजी आ रहा था। एवरी टीचर मस्ट, अब हम लोग करते हैं ना कोर्स 5 साल में, 5 ईयर में इन सर्विस कोर्स करते हैं, ये इसी कोठारी कमीशन के द्वारा, और अभी जो हम लोग आ रहे हैं उस पर भी हम लोग आएंगे। तो 2 चीजें डाली गई इसमें कि इन सर्विस कोर्स जो है कंपलसरी हो, और वो इन सर्विस कोर्स जो है वो हमारे कैरियर डेवलपमेंट के साथ अटैच लिंक। इसीलिए देखिएगा कि हम लोगों का जब भी आता है कि इन सर्विस कोर्स करने की आती है, तो भाई अभी तो ऐसा है, पहले हर एक 5 साल में होता था कि जिन किसी का भी सीनियर स्केल या सिलेक्शन ग्रेड पेंडिंग है या आने वाला है, तो उन लोगों के लिए कंपलसरी होता है। अदरवाइज 5 ईयर में इन सर्विस कोर्स है और उसके साथ इसको अटैच भी किया, लिंक विद कैरियर 6 ईयर हो जाता है। सर ये कमिटी का रिकमेंडेशन हमारा। देन नाउ ये जो कोठारी कमिटी है उनके द्वारा जो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो इवेंट्स दिए गए उसमें चेंजेस हुआ। मतलब पहले जो चीजें थी उसमें नाउ देयर इज सिर्फ टीचर डायरेक्टर, अर्लियर नाउ इट बिकम लर्नर सेंट्रिक एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस। पहले बहुत रिजिड मॉडल था, टीचर जो बताएंगे वही सारा कुछ होगा। नाउ चेंज इज देयर एंड नाउ चाइल्ड सेंटर्ड थिंग्स आर देयर। देन लर्नर्स रिसेप्टिव, टीचर जो है वो देने वाले हैं और लर्नर्स जो है वो सिर्फ रिसेप्टिव। नाउ देयर इज चेंज, learner agency and participation in learning. Now they will also actively participate in this teaching learning process. Then knowledge as given fixed, concrete मतलब constant, जो कुछ भी knowledge दे रहे हैं वो fix है, but now it is
so now it is knowledge as constructed evolved. ठीक, then learning as an individual है, एक इंडिविजुअल का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पढ़ना है या उसको पढ़ाना है. नाउ इट इज लर्नर्स एज ए कोलैबोरेटर. देखिए कहीं ना कहीं सोसाइटी को जोड़ना है. वी पीपल आर सोशल, है ना. इंडिविजुअल ग्रोथ कहीं भी मायने नहीं रखता है. मास यदि डेवलप करेगा, मास यदि आगे बढ़ेगा, तभी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाएगा. इकोनॉमिक्स में एक वर्ड जो है वो बराबर मतलब कि जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो पॉलिसी मेकर हैं उनको तंग करता है. दैट इज रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी गैप, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. गैप को रिड्यूस करना है, वो दैट इज मास, है ना. सारे लोगों के पास सारे लोग पहुंचे से. देन डिसिप्लिनरी फोकस, नाउ मल्टी डिसिप्लिन. वह सिंगल ऑब्जेक्टिव रहता था, यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी. ठीक है, बहुत सारी चीजों को एक साथ देखने की ये सारा रिकमेंडेशन था. और इसी में असेसमेंट में भी चेंजेस हुआ था. ठीक है, असेसमेंट में चेंजेस ऐसा हुआ था कि पहले जो था वो मार्क्स सेंटर्ड था, मार्क्स बढ़ रहा है. और ये सारा जो असेसमेंट पॉलिसी था, बाद में देखिए कोई भी चीज अचानक से नहीं सुधरती है, उसमें जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें चेंजेस आती है. तो बात यहाँ असेसमेंट में ये हो रहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस इम्पार्ट हो रहा था, स्टूडेंट स्ट्रेस में आते हैं, ट्रॉमा में आ रहे थे. तो अब जो है मार्क्स को हटा के, ठीक है, कोठारी कमीशन का ही रिकमेंडेशन था कि वैल्यू एजुकेशन को लाया जाए, चरित्र निर्माण किया जाए, सिटीजन को बनाया जाए. ठीक है, सिविलाइजेशन पे ध्यान दिया जाए, न कि सिर्फ मार्क पे हम ध्यान. तो दीज आर ऑल ऑन द बेसिस ऑफ कोठारी कमीशन. नाउ इसी के कंटिन्यूटी में आगे जो एनईपी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस और ज़्यादा हो गए हैं. और इसी चेंजेस के तहत अभी हम आप इस कदम मिल रहे हैं. ये एनईपी में बिल्कुल जैसे कोठारी कमीशन में बिल्कुल अंडरलाइंड है कि आपको ट्रेनिंग करना है, इन सर्विस को कोर्स करना है, और वो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ या कैरियर के डेवलपमेंट के साथ अटैच है. उसी तरह से ये 50 आवर्स का जो ट्रेनिंग है वो एनईपी का बिल्कुल आप समझ लीजिए कि हाँ पार्ट एंड पार्सल है. और उसका होना जैसे टाइम अभी इम्प्लीमेंट हुआ है तो आगे हो सकता है कि दूसरे लेवल पे और दूसरे तरीके से हो, लेकिन ये होना है एनईपी के तहत 50 आवर्स का ट्रेनिंग. So each teacher will be expected to participate in at least 50 hours of CPD opportunities every year for their own professional development. और इसमें बहुत सारे और भी चेंजेस किए गए हैं. जैसे पहले तो ट्रेनिंग होता था लेकिन दूसरे मोड पे होता होगा. अभी क्या है कि इंस्टीट्यूशन के, स्कूल के सारे लोगों की ट्रेनिंग, इसीलिए देखिएगा कि जो ट्रेनिंग है निष्ठा में हुआ था प्राइमरी टीचर्स के लिए, टीजीटीज के लिए, फिर आया और आगे भी हुआ. और कुछ ट्रेनिंग्स में तो प्रिंसिपल सर लोगों को भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत थी, उन लोगों को भी इस मॉड्यूल में रखा गया और पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हाँ, निष्ठा में सारे मॉड्यूल्स करने. अच्छा, तो ये चीज एनईपी में बिल्कुल इसको भी किया गया है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये जो सारे ट्रेनिंग है वो सारे ट्रेनिंग जो है हम लोगों को करना है, वो चाहे किसी भी मोड में हो, ऑफलाइन मोड में हो, ऑनलाइन मोड में हो. इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं, चूँकि मैं पूरी तरह से इसका जो कंक्लूजन था सर मैं नहीं कर पाया सर देखा, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ विदाउट स्लाइड कि ये जो ट्रेनिंग और एनईपी के तहत प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो पार्ट है वो पार्ट है, उसके तहत सब्जेक्ट, इसीलिए देखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल, हाउ टू टीच अकाउंटेंसी या इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग अकाउंटेंसी, साइंस टीचिंग, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये अलग अलग सब्जेक्ट का, प्राइमरी टीचिंग, और इसके साथ बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो
सारा डिफाइन कर दिया गया है एनईपी के तहत। इसीलिए ग्रैटिट्यूड, प्रोफेशनल ग्रोथ, कॉम्पिटेंसी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, और आईसीटी, हम लोगों के यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हुए हैं जिसमें नेट के अवेयरनेस के बारे में या कंप्यूटर सेवी कैसे होना है। तो ऑलराउंड जो कह सकते हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को बनाया गया है, एंड वी हैव टू फॉलो दीज ऑल मॉड्यूल्स, ठीक है। विद दीज वर्ड आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय थैंक यू। Heartfelt thank to Neetu madam and Abhay sir for nice presentation. Anyhow, we managed to complete 25 hours of in-house training program. और अभय सर ने बता दिया है कि एनईपी ने ये कंपलसरी कर दिया है कि हर टीचर को अपार्ट फ्रॉम इन सर्विस कोर्स वर्कशॉप जो केवीएस करवा रहा है उसके अपार्ट, इसके अलावा स्कूल में 25 घंटे इन-हाउस ट्रेनिंग लेनी लेनी है। नेक्स्ट ईयर से हम अप्रैल में आप टीचर वाइज रोस्टर बनाएंगे। ईच एंड एवरी टीचर विल हैव टू सिस्टमेटिक वे में नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हड़बड़ी में हो गया, लेकिन हो गया, और ऑल ऑफ यू कोऑपरेटेड मी, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स देता हूँ। और हम थैंक्स एक्सटेंड करेंगे फादर को भी, जिन्होंने जो एग्री कर गए हैं कि हमारे सर्टिफिकेट्स को साइन कर दें। देखिए केवीएस में आएंगे तो आपसे